Shukriya. Thank you everyone. Assalamu alaikum for joining us today. This is Ejaz Ahmed Siddiqui. I'm part of the RWise team. और आज हम आपके साथ फिर से मौजूद है with a very special guest from our own city of Aurangabad. We have Imtiaz Jalil sir with us today. Thank you so much sir for joining us today. Thank you very much. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. So this will be ये conversation होगा between Khan Abdul Basit and Imtiaz Jalil sir. And before we go into the conversation, of course, Imtiaz Jalil sir does not need an introduction, but just to let people who are new to the this group, Imtiaz Jalil has been a former journalist, had a very successful career as a journalist with NDTV, started back in Aurangabad with Lokmat and all that. From then, he went on to become an MLA. और उसके बाद अब ये औरंगाबाद के एमपी है. माशाल्लाह, he's been very successful in his political as well as his professional career. इसके अलावा he's someone who's been at the forefront of this entire COVID-19 fight in Aurangabad. So he's the leader who's been leading from the front, which is quite remarkable, and we'd like to thank you, sir, for all that you have been doing. For some of our viewers, मैं सिर्फ आपको OurWise के बारे में बताना चाहता हूँ कि OurWise क्या है. आपके जहन में of course क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये क्या है OurWise. So OurWise एक प्लेटफॉर्म है. हम सभी लोगों का ताल्लुक मोस्टली औरंगाबाद से है, बट हम भले ही औरंगाबाद में नहीं रहते हैं, बट हम लोग औरंगाबाद से काफी हद तक जुड़े हुए हैं. आज आपको और पता चलेगा कौन कौन हमारे साथ है. इट्स बेसिकली अ प्लेटफॉर्म. हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दें. So of course, besides Imtiaz Jalil, he's someone who does not need a platform, but we have been doing a lot of sessions and conversations and webinars with local talent from Aurangabad. जैसे कि हमने मेडिकल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ वेबिनार्स किए, फिर उसके बाद हमने कोविड-19 के अवेयरनेस के ऊपर वेबिनार्स किए, फिर हमने करियर काउंसलिंग को लेकर वेबिनार्स किए कि लॉकडाउन में आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं एंड स्टफ्स लाइक दैट, राइट. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म to give local audience from Aurangabad, especially Muslim audience from Aurangabad within our community, to give them a platform and reach out to lot many people. That's the idea of OurWise. अगर आप इसमें participate करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो feel free to reach out to us. The format for today's session is going to be, it will be a conversation between Khan Abdul Basit and Imtiaz Jalil. You can write your questions to us. अगर आप Zoom पे हमें ज्वाइन किए हैं, तो आप Q&A सेक्शन या चैट सेक्शन में हमें क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं. अगर आप तो आप हमें फेसबुक पे कमेंट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं. So with that, I leave it to you, Khan. Okay, thank you, Ijaz, for the introduction, and thanks Imtiaz Jalil for joining us on such a short notice. I know कल ही हमारी रात में बात हुई थी, around 2 बजे इंडिया के रात में, and then you directly said कि okay, I will join. So thank you so much for giving your time. तो जस्ट टू स्टार्ट विद, मेरा एक ये रहा है कि बीइंग, जैसे इजाज ने बताया कि आप एक जर्नलिस्ट थे, फिर एमएलए रहे, एमपी रहे. सो व्हाट वाज इन योर माइंड व्हेन वी रीच्ड आउट टू यू एंड आस्किंग फॉर कि हमसे कैन वी हैव अ कॉन्फ्रेंस विद यू, बिकॉज हमारा कोई ऐसे मतलब आवर वॉइस इज आल्सो नॉट एनी एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म. neither of us are being part of any affiliated with anything related to your political ऑर्गेनाइजेशन, या कभी हमने आपके लिए कैंपेन भी नहीं किया उसमें कोई, मतलब इट्स वेरी अपफ्रंट. तो व्हाट वाज इन योर माइंड, लाइक व्हाट वाज, मुझे पता है भास रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दिल में था, दिमाग में था कि यार आपने हाँ कैसे बोल दी. पता नहीं, एक चीज होती है कि यार कौन है ये लोग, ठीक है. सो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू व्हाट वाज इन योर माइंड, एंड आई नो दैट मस्ट बी 100 other requests that might be coming from you for either wherever you go for the photos, या फिर for दावत में जाना है, या फिर किसी और के बाइक के पीछे बैठने. कई सारी फोटोज मैंने भी देखी हैं उसमें. And then when I was in Aurangabad, I have seen how the things went during when I was there 18 में. तो दूर से देखे तो हमें लगता है ये पीपल्स पर्सन है, एक पर्सोना जो क्रिएट हुआ है आपका, वो है, और एक अवेलेबिलिटी जो है रीच आउट करने के लिए. तो व्हाट वाज इन योर माइंड एंड देन व्हाई डिड यू से यस? वेल, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. मतलब गुड टू सी औरंगाबादीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब. मैं बड़ी खुशी हो रही है कि आप दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अंदर है, एंड
एजाज भाई थैंक यू, आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया। बासित साहब आपने जो सवाल किया है, मुझे मालूम है कि आप लोग फिजिकली औरंगाबाद से बाहर है, लेकिन आप लोगों का दिल कहीं ना कहीं इस शहर से लगा हुआ है, इस मुल्क से लगा हुआ है। एंड आई नो दिस फॉर श्योर, मतलब मुझे मालूम है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में रहेंगे या औरंगाबाद में रहेंगे तो ही आप औरंगाबाद में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसकी दिलचस्पी रखेंगे। मतलब वहां पे सैकड़ों मील दूर बैठ के मैं समझता हूं जितना इंडिया में या औरंगाबाद के लोगों के अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं रहती है, उतना बाहर अपने मुल्क, अपनी मिट्टी की याद आती है, अपने घर की याद आती है। तो मुझे मालूम है कि आप लोग बाहर रहने के बावजूद भी आप लोग पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, और वो सिर्फ अपने शहर के ऊपर नजर नहीं रखे हुए हैं, लेकिन जैसा बासित भाई आपने बड़ा कैंडिडेटली ये माना है कि आपने ना तो मेरे लिए कैंपेन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो इसलिए कि आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि चलिए यार ये मेरा नुमाइंदा है, ही इज माय रिप्रेजेंटेटिव, ही हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ औरंगाबाद एंड ही इज डूइंग व्हाटएवर द बेस्ट ही कुड डू। तो जैसे ही आपका ये आया है, मतलब ये सही बात है बासित कि ऑलमोस्ट एवरी डे आई गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम टेलीविजन चैनल्स, फ्रॉम न्यूज पोर्टल्स कि सर लाइव के ऊपर बैठ जाइए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो भी। बट आई एम वेरी चूजी अबाउट इट, यू नो, मतलब मैं हर चैनल के ऊपर जाता नहीं हूँ, बिकॉज एवरीबडी नोज, लाइक especially you people sitting outside India, you know how the media is working in India today. It's all, मतलब कोई भी जर्नलिज्म नहीं कर रहा है. That's a very unfortunate part because I have been into journalism for almost 24 years, and in these 24 years I have seen the good side of journalism, and today I'm seeing the worst side of journalism. तो मैं बहुत चूजी होता हूँ, जाता नहीं हूँ. तो मैं सोचता हूँ कि चलो यार, अगर दुनिया के कोने में बैठे हुए अगर 10 लोगों से भी अगर मैं बात कर लूं, तो कम से कम अपनी बात करूं, उनके साथ इंटरैक्ट करूं, एंड एक जो बॉन्डिंग होना चाहिए. मतलब आई कैन एक्सपेक्ट टू मेनी थिंग्स फ्रॉम यू पीपल कि मतलब आप लोग दूर बैठ के मेरे शहर के लिए क्या कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा सेल्फिश भी हूँ. मैं जब किसी से बात करता हूँ तो मेरे शहर के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं क्या फायदा करवा के ले सकता हूँ, तो वो भी एक मेरे दिमाग में रहता है कि बासित साहब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, तो आपके लिए, मेरे शहर के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में भी लूंगा मैं. जी इंशाल्लाह जरूर. हम तो इट विल बी ऑनर फॉर अस टू वर्क फॉर आवर ओन सिटी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड आंसर. तो मैं ये हमारे साथ जो दूसरे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कई लोगों के पास 1 बजे रात का हो रहा है या 3 बजे रात का हो रहा है. तो आई जस्ट वांट टू इनके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने ग्रुप से कलेक्ट कर निकाले थे. तो आई वांट देम टू आस्क द क्वेश्चंस एंड देन वी विल हैव द कन्वर्सेशन इंशाल्लाह. प्लीज. So I'll just quickly introduce for our audience. Like alhamdulillah, we have many people who wanted to join, but then जो हमें एक time पर मिला, so we thought like this is the so few of them were available right away, तो हमने उनसे join करवाया है. And so we have Tausif with us. Tausif Sayyed is in Australia. We have Shoaib Sheikh, he's in Canada. We have Asim Pathan, he's in Malaysia, and we have Sheikh Jamil Bhai from Saudi, and we have Ijaz Siddiqui from Dubai. So I think we guys can start asking the questions that you had in your mind. That So basically, the idea of this. So let me just tell you one more thing. The idea of this is like we have been discussing since last I think 2 years. हमारी बात होती थी आपस में, हम जानते थे एक दूसरे को कहीं ना कहीं से. And every time whenever we used to talk, we always used to have something in mind कि क्या कर सकते हैं यार, ये कर सकते हैं क्या. वो अब आइडियाज थे, कुछ चीजें यहाँ देखते हैं, कुछ चीजें हम चाहते हैं कि वापस औरंगाबाद में हम कर सकें, whether it is about just relief work, charity work, but it's I think we can probably do more than that. तो वो सारे आइडियाज और सारी चीजें थी. जैसे हमने आपको एक ओपन लेटर दिया था when you joined, when you were elected. That was the first time we came up as a group. एक NRIs का जो ओपन लेटर दिया था, तो that time also I think आपका डिटेल में डिस्कशन हुआ था उसमें, and then उसमें से कई सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं जो हमने देखा है कि उसमें से हमने बहुत सारी चीजें बताई थी. And then thank you so much for considering those inputs and getting it done for us. Thank you so much. So Tausif, if you want to start, you can start with your question. ओके, अस्सलाम वालेकुम. इम्तियाज भाई, मेरा एक बेसिक सवाल ये था माइग्रेंट्स रिलेटेड. मैंने आपके फेसबुक लाइव वीडियोस वगैरह भी फॉलो किया है. उसमें जब आप
काफी जगह आप गए और लोगों को हेल्प किया। मेरा उसमें एक क्वेश्चन ये था कि एज वी आर सिटिंग आउटसाइड हजारों मील दूर, हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या जिसमें माइग्रेंट्स को उनके घर पे वापस पहुंचाया जा सके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए वी ऑल आर माइग्रेंट्स, कहीं ना कहीं से हम लोग कंट्री देश छोड़ के बाहर निकले हैं। वी कैन एक्चुअली फील द पेन। हर कोई अपने अलग अलग सिचुएशन में होता है, बट जो माइग्रेंट्स औरंगाबाद में जो फील कर रहे हैं वो काफी गरीब लोग हैं, तो उनको उनके घर पहुंचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? मेरा ये सवाल था आपसे। तौसीफ भाई, अरेंजिंग बसेस या जो भी, मतलब कुछ भी। तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक कंसर्न जो बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है उसके ताल्लुक से आपने ये उठाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात यह है कि अगर मैं एमपी नहीं रहता और मैं एक कॉमन सिटीजन रहता तो शायद कहता कि मैं तौसीफ भाई आप ये मदद कर दीजिएगा करके। लेकिन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस तौसीफ व्हेन यू आर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, व्हेन द गवर्नमेंट नोज दैट देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर बिहाइंड दिस पर्सन. So I know the problems that the migrants are facing. I know the people, and everybody wants to go to their respective districts, states. And for some reason, some of the state governments were adamant that no, we will not accept. There were so many terms and conditions that they had put in. But ultimately, Alhamdulillah, because by the grace of Allah, I have a very good team of dedicated members with me, and they have been working round the clock. And by the grace of Allah, we have till yesterday. I haven't collected the details for today, but till yesterday we had around 5,500 migrants who had registered in my office. Like we had set up a help desk for all these migrants. Because you know what happened, the government, they just issued a circular and they said, if you want to go to Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, anywhere, you just upload your form, you fill this form, you upload it on this site, you upload your Aadhaar card, you upload your medical certificate. But the genuine problem that the people were facing was that no doctor was ready to entertain them, no doctor was ready to give them certificates, medical certificates, and all these people were so poor. How could the government expect that they could be having some smartphone that they'll just upload that form and the Aadhaar card and all those documents? So realizing that situation, when we came to know that none of the government departments is coming forward, we decided let's take it on ourselves, and so we set up this help desk. I'm sure you must have seen the visuals on Facebook. The very first day when we started this, hundreds of people lined up in front of my office. And then I started getting criticism, and then everybody started, hey, what is this, social distancing and all those things. But I knew that people were so eager to get back to their homes. But finally, Alhamdulillah, we did everything. And till yesterday, I presume that at least out of those 5,500, there are around 3,000 or 3,000 odd who are from different states. And we are expecting in the next 2-3 days that the railways will start operations. Like we had 3 rail connections directly from Aurangabad to Madhya Pradesh, and all the people from Madhya Pradesh we could manage to send them by those trains. Now we have a number of people especially from Uttar Pradesh and Bihar, and we are expecting in another 2-3 days time that we will be able to send all these people back to home. So as of now, तौसीफ भाई, मुझे आपसे अगर कुछ अगर चाहिए तो मुझे सिर्फ ये है कि आपकी इबादत में सिर्फ हमें याद करिएगा कि हमें इतनी ताकत दे, कुव्वत दे कि हम जिस काम के लिए निकले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अगर हम पूरा कर लेंगे तो दैट इज बहुत बढ़िया एक अचीवमेंट मैं समझता हूँ. बिकॉज तौसीफ भाई, यू वोंट अंडरस्टैंड कि मतलब पीपल एक्चुअली आई हैव सीन क्राइंग. मतलब एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जब हम उनका फॉर्म सबमिट करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, एंड वी कुड गेट दोस ट्रैवल पासेस फॉर देम, और जब उनको देते हैं तो आई हैव सीन सो मेनी ऑफ देम क्राइंग एज इफ कि मतलब मैंने उनके लिए क्या लाके दे दिया है. Now why the desperation? क्योंकि किसी को अपने माँ बाप के पास जाना है, किसी को अपने परिवार के साथ रहना है, अपने घर जाना है. मतलब लोगों की एक ऐसी सोच हो गई थी कि भाई मैं वायरस नहीं, मुझे मरने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरे घर पे भिजवा दो, मैं अपने घर वालों के साथ रहना हूं. सो दैट फीलिंग मैं समझता हूं इस मतलब मैं उसको शब्दों में या वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं. बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट. इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर हम ये पूरा क्लियर करेंगे. इंशाल्लाह. थैंक्स फॉर योर आंसर. Even that actually killed us inside. जब हमने वो पहली बार वो जो
जो इंसिडेंट हुआ ट्रेन वाला, वो बड़ा ही मतलब दर्दनाक भी था, और एक वो दूर रहने के बाद आपको बहुत वो लगता है। और हमें जो चौथी तौसीफ का हमारा डिस्कशन हुआ था, पूछने का कंसर्न भी वही था कि यार इम्तियाज भाई हैं वहां पर, तो हम इजीली रीच आउट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यार मतलब व्हाट एवर वी कुड डू वी कैन हेल्प इट आउट। बट अल्लाह आपको और उसमें जो है ताकत दे और ज्यादा सब्र भी दे, क्योंकि आई नो दीस थिंग्स एट द ग्राउंड नाउअडेज आर वेरी टफ। थैंक यू सो मच फॉर हैंडलिंग थैंक यू। बराबर। नहीं, और एक माइग्रेंट ही दूसरे माइग्रेंट का बेसिकली दर्द समझ सकता है, तो बेसिकली मेरा उससे इंटेंशन था कि क्या चल रहा है। ओके, अगर कुछ रहा तौसीफ तो डेफिनेटली आई टेल यू। थैंक यू। बेसिकली जज़ाकल्लाह। वी हैव आसिम फ्रॉम मलेशिया, आसिम पठान। तो उनका भी एक क्वेश्चन था, और वो तो एक कंसोलिडेटेड भी कंसर्न था। तो आसिम प्लीज गो अहेड एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। इम्तियाज सर, मेरा जो क्वेश्चन है इट वाज अबाउट अ रीसेंट इंसिडेंट just before the lockdown, wherein you call in a meeting with all the ulamas in Aurangabad to decide upon whether we should continue praying in the masjids. तो उसका जो आउटकम था, एटलीस्ट we in the NRI community, इतना ज़्यादा was we were not happy about that outcome. So I just wanted to know, Miss, what were your expectations from that meeting, and is there any learning from that meeting for you? नहीं आसिफ, देखिए मतलब द गाइडलाइंस वर वेरी क्लियर फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट एट एनी कॉस्ट वी विल हैव टू मेंटेन दैट सोशल डिस्टेंसिंग। और मतलब मस्जिदों के अंदर आपको तो पता है कि मतलब कितने लोग आते हैं करके, रमजान भी आने वाला था, and it was a very very tough decision for us also to take that call. Like nobody could have ever imagined कि हमारी मस्जिदें बंद हो जाएंगी करके उसमें, but then it was a question of human life. And तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन था, ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने कहा कि आपको ये बंद कर देना चाहिए। वी थॉट if we really want to implement that, then we will have to take all the ulemas into confidence. तो मैंने मेरे घर के ऊपर ही सारे जितने भी उलमाए दीन हैं इनको सबको बुलाया था, और मैंने सोचा था कि ये फैसला मेरा नहीं रहेगा, ये फैसला उन लोगों का रहेगा। उसके अंदर आई वाज जस्ट अ मीडिएटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द उलेमा, एंड इफ दे हैड टेकन अ कॉल कि नहीं भाई हम तो करेंगे करके उसमें, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि उस वक्त का सिचुएशन इतना था। देखिए मतलब मलेशिया की मस्जिदें और यूएई की मस्जिदें और हमारे पास के जो तंग गलियों के अंदर, बस्तियों के अंदर जो हालात है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं हमको भी एक ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर लेना था कि ताकि हमारे ऊपर ये इल्जाम ना आए कि भाई ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है ये आप लोगों की वजह से फैल रहा है क्योंकि आप लोग जा रहे थे। एंड देयर वर एन नंबर ऑफ स्टोरीज इन मीडिया आल्सो कि देखिए पूरी मंदिरें बंद हो गई है लेकिन मस्जिदें हैं तो अभी भी चालू है, तो ये जो स्प्रेड हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट इज बीइंग डन इन द मस्जिद। तो एक डिसीजन लेना था, तो ऐसा नहीं था कि इट वाज अ डिसीजन दैट वाज टेकन ओनली विद रिलेशन टू औरंगाबाद, कि सिर्फ हमने औरंगाबाद के अंदर कुछ अलग फैसला लिया था। इट वाज अ डिसीजन दैट वाज टेकन अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपने देखे होंगे कि मतलब अगर हमारे दुनिया की सारी मस्जिदों के अंदर अगर ये फैसला लिया गया था और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाओं ने इसके ऊपर फैसला कर दिया था, सो द क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट कि हमने इसको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। द क्वेश्चन वाज हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट, कि लोगों ने अपनी इबादतें भी करे और ऐसे टाइम के ऊपर ये जो भी गवर्नमेंट का एक ये आया हुआ था उसको भी रिस्पेक्ट करते हुए करे। और मैं समझता हूं कि उस वक्त अगर ये फैसला नहीं लिया जाता तो उस वक्त किसी को ये नहीं पता था उसके अंदर, इवन आई वाज नॉट अवेयर कि मतलब हाउ सीरियस दिस वायरस इज गोइंग टू बी। तो अगर हम लोग अगर मतलब इसके अगेंस्ट में जाते तो आई थिंक द मेन विलन ऑफ द एंटायर पीस मेरे हिसाब से तबलीग के बाद अगर कोई रहता था तो उसको इम्तियाज जलील का है तो जिबा कर दिया जाता था कि साहब आपकी वजह से ये फैला हुआ है करके। सो इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन दैट वी हैड टू टेक। बट लेकिन एक अच्छी चीज आसिम ये हुआ है कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जब दोबारा मस्जिदें खुलेगी तो आप देखेंगे कि वहां पर जो हमारी सिर्फ 2 या 3 सफ़े हुआ करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद आप देखेंगे कि मस्जिदें बहुत अच्छी तरीके से आबाद होगी, क्योंकि इस दौर के अंदर हमने अपने घरों को जो मस्जिदें बनाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा एक मैं समझता हूँ मूव था। इंशाल्लाह जैसा बड़ा चैलेंजिंग जॉब भी था वो, बिकॉज लोगों के इमोशंस भी थे एक, और शुरू में समझ में भी नहीं आ रहा था जो ये जो बीमारी वो इतनी समझ नहीं आ रही थी। हमारी भी बात हुई थी कि हमने अवेयरनेस कैंप पर जमील भाई ने कुछ सजेशंस दिए थे कि वी विल स्टार्ट अवेयरनेस कैंपेन्स विद फेसबुक लाइव्स आल्सो टू अवेयर पीपल, बट देन बैक
जो हमें भी मिल रहा था वही था कि जरा जज्बात में लोग थे कि यार अब तो दुआओं ज्यादा है, इबादत ज्यादा करना है। बट आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड डिसीजन दैट वी वर एबल टू क्लोज दैट मस्जिद। और मतलब आई न्यू कि वो थोड़ा था ही बोलकर। तो एक्चुअली जो आपने जो बात बोली ना कि जो प्रोपेगेंडा चला है और हम भी मतलब बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं वो सारी चीजें जो हेट न्यूज चली है, वी ट्राई टू काउंटर दैट, वी ट्राई टू प्रूव दैट दिस इज नॉट समथिंग यू शुड नॉट काइंड ऑफ क्रिमिनलाइज दैट। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो आई विल जस्ट आस्क एजाज सिद्दीकी फ्रॉम दुबई टू पुट योर क्वेश्चन दैट यू वांटेड टू आस्क इम्तियाज जलील। Good. Thanks, Khan, for that. So, Imtiaz bhai, see, being a journalist and you've been there, done that, right, for 20 odd years. और आज जो सिचुएशन है, जैसे आपने बोला कि the situation of media and journalism today. Firstly, fake news, right? That's the biggest thing. WhatsApp University and fake news and all those things that we see around, and it has. So I think आज की current situation में there are two aspects जहाँ पे हमको we want to know your view. Firstly, how the fake news has impacted the COVID efforts. Secondly, being a Muslim MP, right? जैसे कि आपने अभी बताया, right? After Jamaat, had it been something, अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई होती, it would have been a fuss out of it, right? So being a Muslim MP, I think it has become all the more crucial for someone like you to manage the fake news, right? Within your supporters and within amongst the people around, right? There are lakhs of followers who get influenced by you, right? But these could be the same people who get influenced by the fake news as well at the same time, right? So इसको किस तरह से मैनेज करें? What are your messages? And being a journalist, I think you're in a very unique position to answer this question. That being a politician and a leader, और प्लस जर्नलिस्ट भी आप रहे हैं, तो आप if you can shed some light there कि how do we handle this? नहीं इजाज मतलब देखिए मतलब दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट द वे द एंटायर दिस कोरोना थिंग हैज बीन ब्लोन अप। और इनिशियली तो मतलब सिर्फ इतना बोलना बाकी रह गया था कि पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस फैला है वो दिल्ली के मरकज से फैला है, सिर्फ इतना एक बोलना बाकी रह गया था। और अगर उनके पास कोई जरा सा भी लिंक अगर मिल जाता तो शायद ये भी बोल दिए होते। एक बात सही है कि एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन एक चीज एज पॉजिटिव मुझे ये लगती है, इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रुथ, मतलब आप अगर डट के अगर बोले तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास होता है, पीपल थिंक कि नहीं यार मतलब ही इज टॉकिंग सेंस, ही इज टॉकिंग मतलब ये जेन्युइन बंदा है करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब ये ट्रेन के नीचे 16 लोग आके जब खत्म हुए वहां पर, तो मैं वहां पर आई वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू रीच देयर, हालांकि वो मेरा एरिया नहीं आता है, उसके बावजूद भी मैं वहां पर गया। और मुझे जाने के बाद मतलब एक जो फीलिंग आई थी ना कि मतलब यार मैं रोज देख रहा हूं करके, एंड दैट पर्टिकुलर मतलब मैंने जो एक चैनल को मैंने ये दिया था, मैंने आई एम टोल्ड कि मतलब अभी मुझे मेरा लड़का बता रहा था कि वो उसको 1.5 दिन के अंदर कुछ 7.5 मिलियन उसको व्यूज है करके, एंड ओवर आई थिंक 1,70,000 शेयर्स है। एंड इफ यू रीड द कमेंट्स, मतलब उसमें कई ऐसे लोगों के कमेंट्स जो मैंने पढ़ा था इनिशियल उसके अंदर, ये लोग है तो भक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये मालूम था कि यार मैं भक्त होने के बावजूद भी मेरे दिल में एक बात है तो मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि मैं भक्त हूं। तो मेरे दिल की बात जो है ये बंदे ने बोला है करके उसमें, विच इज वाई यू कुड सी so many shares of that particular clip and so many hits like 7.5 मिलियन हिट्स एक छोटे से वीडियो को होना, एंड दिस इज जस्ट अबाउट द हिंदी वन। I had also given a bite in Marathi. तो मराठी के अंदर all the more there are n number of non-Muslims who have commented on that and everybody has said कि यार नहीं मतलब तुम्ही खरं बोललो, तुम सही बताए है, बिल्कुल तुम्ही जे बोललेले आहे ते खरं आहे। तो somewhere down the line मतलब आपको अपने हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, knowing this very well कि एक मीडिया आपके खिलाफ एक एजेंडा के तहत काम कर रहा है उसके, एंड दिस ऑल मतलब जो एकदम हाईएस्ट लेवल का एक चीप प्रोपेगेंडा जो है वो आपको मिलेंगे, उसमें सूट बूट पहनकर बैठने वाले जो पत्रकार आपको मिलेंगे वो किस थर्ड ग्रेड के जर्नलिज्म कर रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं और सारी दुनिया को भी समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन एंड स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम इट बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट, यू नो। मतलब मैं
वो एक कहावत है ना कि वो कत्ल भी करके छूट जाते हैं और हम उफ भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। जब मैं जब बोलता हूं तो मुझे ये रहता है कि यार मैं अब बहुत थक गया हूं, आई नीड टू टेल समबडी टू यार स्पीक ऑन ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी। लेकिन फिर ये होता है कि यार अगर बंदे ने एक आध गलत शब्द अगर निकाल दिया, कोई एक सेंटेंस उसके मुंह से गलत निकल गया या एक वर्ड अगर गलत निकल गया तो इसका इतना बड़ा बऊ बनाया जाएगा और फिर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा उसके अंदर। तो मतलब मुझे तो मतलब आई हैव टू बी वेरी कॉशियस कि मैं क्या बोल रहा हूं करके, क्योंकि हमारे एक एक शब्द को तोल मोल कर पूरा पोस्टमार्टम उसका किया जाता है कि कहीं पे कुछ निकालेंगे करके। लेकिन द एडेड एडवांटेज विथ मी इज आई हैव वर्कड इन जर्नलिज्म फॉर 24 years, तो मुझे मालूम है कि मीडिया को क्या देना होता है और क्या नहीं देना होता है। तो बहुत प्यारे अंदाज में भी जो जूते मारना होता है मैं मार के निकल जाता हूं और उन्हें बहुत बाद में पता चलता है कि अरे यार अपने को तो थप्पड़ पड़ गया है ये बंदे के हाथ से करके उसने। दैट इज द एडवांटेज आई हैव विथ मी विथ माय बैकग्राउंड एज अ जर्नलिस्ट। गुड कॉम्बिनेशन एक्चुअली। गुड कॉम्बिनेशन। So that Thank that you. you know that brings me one thing in mind। जब हम स्टार्ट कर रहे थे इंटरव्यू, मेरे दिमाग में एक चीज थी कि शायद हमारी 2 बार बात हुई है पिछले 8-15 दिन में, ये कोविड से रिलेटेड 2 से 3 बार जो भी हुई है। सो मतलब सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इट वाज 1:30 और 2 AM इन द नाइट। मैसेज किया जब भी उनका रिप्लाई आया, एंड देन 2:30 इज आस्किंग मी कि कॉल मी नाउ, आई एम गोइंग टू स्लीप एंड आई कैन टॉक। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था कि आप सोते नहीं है? तो फिर बस रॉन्ग जर्नलिज्म क्वेश्चन मैंने अवॉइड कर दिया। गुड क्वेश्चन। नहीं बस सीरियसली मतलब अब ये पीरियड के अंदर तो अब आप देखेंगे कि इफ्तार करने के बाद फिर आई गो टू माय सेंटर हेल्प डेस्क के ऊपर जाता हूँ। वहां पे तकरीबन कल रात में आप ये समझ लीजिएगा कि 1 बजे तक वहां पे लोग आ रहे थे और ऐसे इतने गरीब लोग होते हैं कि मैं सोचता हूँ चलो यार अब 10 बजे आज ऑफिस बंद कर दिया जाए। बट व्हेन यू सी दोस पीपल ना यार कि कितने किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, कितने लोगों को ऐसा है कि भैया मेरे को उतना एक पेपर मिल गया है कि मैं अपने घर चले जाऊंगा करके। सो वी जस्ट कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग कि नहीं यार चलो 1 घंटा और खोल लो, 1 घंटा और खोल लो। तो फिर बस अब तो यह हालत है कि फजर की नमाज के बाद सोते हैं और फिर फोन की बेल जब होती है पहली तब उठना पड़ता है। और फोन की बेल कभी भी हो सकती है क्योंकि जिसने आपको वोट दिया है वो ये समझता है कि मैंने वोट नहीं दिया है, मैंने तो 5 साल ये बंदे को खरीद लिया है भाई, मैं तो इसको कभी भी उठा सकता हूँ और कभी भी कुछ भी इससे मांग सकता हूँ करके। वही मैं पूछने वाला था, आप सोते नहीं, तो मुझे लगा कि वो बड़ा अलग तरीके का लगेगा। तो एनीवेज थैंक यू फॉर बीइंग ऑलवेज अवेलेबल अगेन। मैं इसको उस अंदाज में नहीं कि मुझे पता है किस तरह से काम होते हैं, किस तरह से चीजें होती है। सो ज्यादा टाइम न लेते हुए देन आई विल आस्क जमील भाई टू आस्क हिज क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू आई थिंक व्हाट यू हैव जस्ट सेड कि हाउ तो एक जो टेक अवे मैं बताना चाहता था कि व्हाट एजाज इज आस्क कि हाउ वी कैन मैनेज और हाउ वी कैन काउंटर दिस हेट और फेक न्यूज है बीइंग अ मुस्लिम जो चीजें हो रही है। तो जो मेरे दिमाग में आया कि द बेस्ट थिंग इज आई थिंक योर वर्क शुड स्पीक as a counter to that narrative. Yeah. You do, wherever you are, if you're in professional world, if you, whatever, work you have, apart from that, if you're, working any social activities, human rights, anything, that way it should speak up the way, जैसा उनका जो बयान जो स्पीच जो चली है, तो वो न्यूयॉर्क तक भी कई लोगों ने, मुस्लिम जो अपने हैं, इंडियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, they reached out and then said कि यार ये हमने सुना है और ये बंदे ने बहुत काम किया है, from your place। तो मैंने बोला कि हाँ हम वो हमारी प्लेस से ही और हमारे एमपी है वो। तो वो जो आप काम करे हैं वो आई थिंक दैट स्पीक्स मोर देन जस्ट काउंटरिंग इनटू द वर्ड्स। दैट्स फॉर अस। तो जमील भाई आई थिंक आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जमील भाई इज फ्रॉम साउथ एंड ही हैज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पेशेंट्स एंड हॉस्पिटल। इम्तियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज भाई मेरा सवाल ये था कि अभी जैसे केसेस औरंगाबाद में बढ़ रहे हैं कोविड के और उसमें हॉस्पिटल्स टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद कोविड के टेस्ट रिजल्ट्स की जो रिपोर्ट्स है वो पेशेंट्स को नहीं मिल रही है, जैसे आपको भी पता है, मैंने आपके फेसबुक के लाइव पर भी देखा हूँ डिस्कशन आपका अथॉरिटीज के साथ। तो इसके अंदर मतलब एक ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो ये है कि पेशेंट के राइट्स जो है वो उनको दिए जाए और हॉस्पिटल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हॉस्पिटल वाले करें, उनके भी राइट्स है हॉस्पिटल के। तो बेसिकली दोनों के राइट्स को बैलेंस करते हुए कोई एक मैकेनिज्म पे लेकर आए ताकि सारे लोगों को आसानी हो और लोग तो फिर प्रोएक्टिवली सपोर्ट करेंगे इस चीज को
और फिर हम तो इस ट्रांसमिशन को रोक सकेंगे। वरना होगा ये कि लोग तो फिर छुपाएंगे इस चीज को, घरों में बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं यार ये हो गया, तो वो सारे घर को लेके चले जाते हैं और फिर ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो वन वे टू स्टॉप इस कि पब्लिक का ट्रस्ट लिया जाए अथॉरिटीज के अंदर और इसको तो एड्रेस करें, तो ये एक समझो पॉइंट रहेगा ये चेन को ब्रेक करने के लिए। बिल्कुल जमील भाई, बिल्कुल मैं हर रोज ये मतलब फेस कर रहा हूँ। बहुत सारे मतलब पब्लिक का जब रेजिस्टेंस होता है, जब मेडिकल टीम जाती है या पुलिस वहां पर साथ में जाती है, द फर्स्ट पर्सन दे कॉल आउट इज इम्तियाज भाई जरा इधर आइए ना, ये यहाँ पे ऐसा ऐसा मसला हो गया है करके। एंड आई हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस कि भाई मेडिकल लोगों का भी मतलब वो भी डिमोरलाइज ना हो, पुलिस को भी ऐसा ना लगे कि भैया देखिएगा ये एमपी आ गया है तो हम हमारे को पेशेंटों को भी हाथ नहीं लगाने दे रहा है करके। बट देन यू नो देयर वर सर्टेन इंस्टेंसेस जिसके बाद मतलब मैंने जहां पे पर्सनली गया और वहां पे आई हैव बीन फ्रॉम डे वन demanding from the government. Just 3 days back, I had a meeting with the chief minister when he invited all the leaders of all major political parties. तो उनके वीसी के अंदर मैंने ये डिमांड पुट अप किया था कि what is the so secretive about it. मतलब I as a person I have all the right. अगर कोई टेस्ट करवा रहा हूँ, I have that right कि आपने मुझे बताया कि मतलब whether I am positive or negative करके उसमें, but you will come with a fleet of आपके पूरे पुलिस के तामझाम के साथ आएंगे, पूरे पुलिस वाले बिल्कुल इस तरह से कि मतलब कोई चोर उचक्के को उठाकर लेकर जा रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट डन करके। तो ये मुद्दा मैंने उठाया था और मैं बोला ठीक है, उनका ये था कंसर्न ये था कि मतलब हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा एरिया के अंदर उनका फिर थोड़ा सा बॉयकॉट हो जाता है कि भैया ये घर में से निकला है करके। मैं बोला कम ऑन यार, मतलब औरंगाबाद में कितने 500 लोग हैं, वो पूरे 500 लोगों की लिस्ट मेरे पास है कि कौन कौन से है करके, मतलब ये दिस कांट बी द रीजन। एंड आई एज अ patient, suppose if I am tested positive and I don't believe on that report, then at least I have that right कि मैं जाके मैं किसी प्राइवेट लैब्स के तो उसको तो रिकन्फर्म करवाऊं कि भैया मेरा स्वाब टेस्ट फिर से लिया जाए करके। But that accountability factor is what I am stressing on, and tomorrow we have a meeting with the district collector and all the government officials, and I have made it very clear that when you are saying that somebody has tested positive, then please come out clear on that. Any officer, whether it's the dean of the government medical college and hospital, whether it's the medical officer of the AMC or any authority, she or he will have to give it in writing that this person's swab test was taken on this day and she has been tested positive and now she needs to be sent to a quarantine center or whichever hospital that is. Now the problem is none of the authorities are actually ready to take that accountability factor. मैंने कहा कि नहीं, अब आपको तो साइन करके देना पड़ेगा, whether it's the dean, आपने साइन करके देना पड़ेगा तो ही पेशेंट जाएगा करके। So unless until we have that accountability factor, मतलब आप लोग सब औरंगाबाद के हैं, you must have seen that clip of one Buddy Line case कि जहां पर कुछ ऑफिसर चले गए वहां पर उठाने के लिए और लोगों ने बोला कि नहीं हमारे को आप बताओ, रिपोर्ट बताओ, एंड फाइनली दे हैड टू गो बाय। ना उतना वायरल हो गया था वो कि लोगों को ऐसा लगा कि देखो कैसा दादागिरी करके है तो ये मेडिकल वालों को निकाल रहे हैं करके। बट आई सेड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। यू जस्ट कांट कम कि मैं बाहर खांस रहा हूं और किसी ने तो भी पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा कि साहब ये बंदा खांस रहा है ये घर के अंदर, एंड द पुलिस कम्स और बोलेंगे कि चलो भाई खांस रहे, अब आप पॉजिटिव है आप चलिएगा करके उसमें। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर बनाने के लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिया हूं, एंड होपफुली वी विल कम आउट विद सम सॉल्यूशन इन टुमारोज मीटिंग। मैं ये समझ सकता हूँ, देखिए मतलब एक चीज मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ कि इट्स बीन लाइक 1.5 महीना के करीब हो गया है। Everybody is stressed out. I have great respect for the medical team. I have great respect for the way the police department is working, the health authorities are working. मैं appreciate करता हूँ, but that doesn't mean कि मतलब उस appreciation के नाम के ऊपर है तो आप अपना कुछ भी laws and rules बना ले and you just अपने मर्जी के हिसाब से चले। There has to be some guidelines for that. जो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा था, there were too many masters, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एंड दिस वी वर सीइंग अक्रॉस द कंट्री। लाइक कलेक्टर बोलेगा कि मैं कमिश्नर को नहीं सुनूंगा, कमिश्नर बोलेगा कि मैं पुलिस कमिश्नर को नहीं सुनेगा, देन द मेडिकल अथॉरिटीज विल से कि नहीं तो हमारा केस है करके। सो देयर वर एक्चुअली टू मेनी मास्टर्स, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा था। बट थिंग्स आर स्ट्रीमलाइनिंग नाउ एंड hopefully things will improve, I think, in the coming days. एक छोटा सा follow up है. Thanks for the explanation. This will really help. Jamil bhai, I think this answered your question in general, right? So we can kind of convey this message as well.
तो उसका एक फॉलोअप ये था कि अगर हमें कोई कंसर्न्स हैं जो हमें दिखता है, बिकॉज समटाइम इट हैपेंस ना, आप जा रहते हैं थोड़ा एक डर से, या आपके पास उतना रिसोर्सेस नहीं होते दैट यू कैन रेज दैट कंसर्न। तो अगर हमें कंसर्न रेज करना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे? लाइक नॉर्मली व्हाट वी कैन डू इज लाइक ट्विटर पे टैग कर सकते हैं, आप हो गए, मतलब सीएम हो गया हाँ, या नहीं नहीं, मतलब आप यकीनन, मतलब यू कैन, लेकिन देखिए, मतलब फिर वही बात आ जाती है, एवरीबडी इज सो स्ट्रेस्ड आउट ट्रू कि ट्रू। किसी को कोई ये नहीं रहेगा। जैसा मतलब जब ट्रेन है तो 16 लोगों के ऊपर से चले गई, मैंने खुद ने प्राइम मिनिस्टर के है तो मतलब खूब लताड़ते हुए कहा कि मैंने आपको ट्वीट करके मैंने बताया था कि वी नीड ट्रेन्स टू टेक दीज ऑल दीज माइग्रेंट्स। मैंने रेलवे मिनिस्टर को ट्वीट किया था, मैंने चीफ मिनिस्टर को ट्वीट किया था। तो बेसिकली मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि अब उनके पास कितनी टीम्स, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक इसी के अंदर लगा हुआ है। तो डिफिकल्ट टू ब्लेम समबडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम हमारी तरफ से जितने भी ग्रीवेंसेस मीटिंग के अंदर, वन ऑन वन मीटिंग्स होती है, उसके अंदर हम ये इश्यूज उठाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एड्रेस्ड आल्सो। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच। सो शुएब इज इन कनाडा राइट नाउ, तो आपका क्या क्वेश्चन है शुएब? या तो इम्तियाज भाई, क्वेश्चन ये था कि ये सब कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके बीच में जो बोलते हैं कि जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, जिसका वक्त मुकर्रर है, लेकिन इसके वजह से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, कि किसी के एग्जाम चल रहे थे, कुछ हो रहा था, स्पेशल फोकस इज ऑन द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, मे बी फ्रॉम इंजीनियरिंग, मे बी फ्रॉम ये, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी जो दिख के आ रहा है कि प्रीशियस कमोडिटी जो है वो है फार्मेसी स्टूडेंट्स, कि इन्होंने 4 साल अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इनको समझ भी है, तो ये जो एक क्या बोलते हैं इसकी जो जो ताकत है और जो ये स्ट्रेंथ है, इसको हम किस तरीके से एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम औरंगाबाद इसको यूज कर सके। हमारे पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, वोखाट है, मिडास है, कि आप आपको इसके लिए हम कुछ मदद कर सकते हैं तो वो बताइए, या फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो बताइए। और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, जो भी पता है कि सब कुछ साइडलाइन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन ये आज की जरूरत है कि अगर ये फ्रेश ब्लड हम लेके आएंगे तो हो सकता है कि ये कुछ नया काम कर जाए और जो दुनिया में आगे किसी ना किसी को तो फायदा करके चले जाए। शोएब भाई, एक बात ये है कि मतलब ये तो सभी लोग मानेंगे, हम दुनिया में कहीं पर भी रहे, द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी द सेम आफ्टर दिस कोविड। मतलब दुनिया बहुत कुछ बदल जाएगी उसमें। और ये बात भी सही है कि हमारा जो यूथ है, जो इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारा युवक, उसको हम अब किस तरह से कैपिटलाइज करेंगे। मतलब अब दुनिया के अंदर देखिए, मतलब चाइना का क्या हाल होने वाला है, यूएस हमारे को रखेगा नहीं रखेगा, यूएस का क्या स्टैंड रहने वाला है, दीज आर ऑल क्वेश्चंस की। तो हमें अब ये सोचना है कि हम अपने आप को किस तरह से यहाँ पर एक पावरफुल एक सेंटर बना सकते हैं। एंड आई थिंक जैसा आपने फार्मेसी के बारे में कहा है, मैं तो सिर्फ फार्मेसी ही नहीं, औरंगाबाद नाउ इज इमर्जिंग एज अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑल्सो। फार्मेसी की आपने बात करी है उसमें। नाउ द बेस्ट थिंग इज कि जो बच्चे फार्मेसी के अंदर है, उनको एक चीज समझना चाहिए कि अब आप जॉब्स मत देखिएगा, ट्राई एंड आप ये कोशिश करिएगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाए, आप अपने बिजनेस के बारे में सोचे, अपने फैक्ट्री बनाने के एस्टेब्लिश के बारे में सोचे, बिकॉज जॉब्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउ। मतलब जो ऑलरेडी है वही लोग कितने दिन सरवाइव करके, उसके अंदर दैट्स अ हार्श रियलिटी। मतलब उसके अंदर कोई ये नहीं है कि ऑलमोस्ट वर्कफोर्स कितना काटा छाटा जाने वाला है, दैट्स अ स्कैरी पिक्चर। तो अब हमारे को ये है कि हम लोग अपने अपने एस्टैब्लिशमेंट्स किस तरह से, अपना बिजनेस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कैन वी हैव आवर ओन फैक्ट्रीज, कैन वी हैव हमारा एंटरप्रेन्योरशिप को हम डेवलप करवा सकते हैं क्या, समथिंग ऑन दैट लाइंस वी विल हैव टू वर्क टुगेदर। एंड और ये फील्ड के अंदर ये जब काम करने का, जब एवरीथिंग लॉकडाउन ये वो पीरियड खत्म हो जाएगा, देन आई थिंक ऑल यू पीपल विल हैव टू कम इनटू पिक्चर, और तब आप लोगों की मदद ली जाएगी कि आप लोगों के तरफ से किस तरह का गाइडेंस होता है। एंड देन वी विल हैव टू एनकरेज द यूथ टू स्टार्ट योर ओन सेटअप इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग आफ्टर जॉब्स, क्योंकि
अब जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल बात रहेगा। फार्मेसी के लिए हम खुद ये कर रहे हैं कि वी वांट टू मेक औरंगाबाद, बेसिकली मेरा खुद का ये है कि वी आर ट्राइंग टू रोप ए नंबर ऑफ बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हम औरंगाबाद के अंदर, बिकॉज बेसिकली देखिए मतलब ये सबके लिए है कि चूंकि आप लोग सब औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मट्टी से मोहब्बत है। नाउ आप लोगों को मेरी तरफ से एज एन एमपी ऑफ औरंगाबाद मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि यू विल हैव टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ औरंगाबाद। सी आप जब इंडस्ट्री इंडिया में आने की जब बात करती है, वी थिंक अबाउट पुणे, वी थिंक अबाउट बैंगलोर, वी थिंक अबाउट अहमदाबाद, लेकिन इतना ज्यादा सैचुरेशन वहां पर हो चुका है कि अब बैंगलोर की कई इंडस्ट्रीज ये सोचते हैं कि नहीं यार, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू रीच आउट टू द एयरपोर्ट, हमारी कंपनी को जाने के लिए अगर 2-2 घंटा हमको ट्रेवल करना है। Whereas in Aurangabad, we have a large pool of land available. MIDC Shendra that is coming up, it's a 5-star industrial zone. Auric City जो आ रहा है, आप लोग अगर ऑनलाइन अगर इसको चेक करेंगे, it's a lovely thing that's coming up. The only thing is now we need to attract industries from across the globe. And I think this is the best time कि जब चाइना से लोग निकल रहे हैं तो हम इंडिया को अट्रैक्ट करें, और जब इंडिया में वो आ रहे हैं तो हम औरंगाबाद को पुश करें करके। अब क्योंकि पूना का भी सिचुएशन वैसा ही हो गया है, तो अगर कोई बंदा अगर कोई इंडस्ट्री पूना में या दूसरे शहरों के अंदर कर रहा है, I think the cost difference would be huge if he decides to set up that same industry in Aurangabad. और कैसा है कि आप एयरपोर्ट के बाहर निकले, it's hardly going to take 15 minutes for you to reach out to that industrial area जो हमारा नया औरिक सिटी या शेंद्रा डेवलप हो रहा है। तो आप लोगों को खुद पर्सनली है तो कभी भी ये मौका मिल गया है तो औरंगाबाद को पुश करिएगा उसमें, क्योंकि अगर औरंगाबाद डेवलप होगा तो और बच्चों को अच्छी नौकरियां लगेगी, एम्प्लॉयमेंट लगेगा। अभी तो देखिएगा मतलब अब पता नहीं है आगे का क्या सिनेरियो रहेगा, लेकिन हमने एयरपोर्ट के अंदर इतने फ्लाइट्स हमने लेके आ गए थे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यही था कि अब नाउ दैट वी हैव गुड एयर कनेक्टिविटी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ट्राइंग फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आल्सो। मतलब मैं ये बताना चाहूंगा एजाज भाई को कि हमारी बहुत आगे तक हम लोग चले गए थे कि हम लोग एक दुबई से एक फ्लाइट का था और एक सिंगापुर से हम लोगों का एक फ्लाइट के लिए ऑलमोस्ट मतलब उसमें मतलब थैंक गॉड कि मतलब मैं सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो आई वाज यूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड दैट प्लेटफॉर्म कि चलो यार मौका मिला है तो औरंगाबाद को पुश कर दिया जाए। तो जिस एयरपोर्ट के ऊपर महज 2 फ्लाइट्स ऑपरेट किया करते थे, आज वहां पर 16 फ्लाइट्स ऑपरेट हो रहे थे। Now all that has stopped. I don't know what is going to happen tomorrow because the airline industry is really going to be in big mess. It's already is in big mess. तो आगे क्या होने वाला है? But once we have that connectivity, तो हमारा next target यही रहेगा कि let's pull in some big industries from across the globe here. Thanks for that detailed answer. So अभी क्या है कि कुछ और लोग भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो thanks तौसीफ, शोएब, एजाज, जमील भाई for your time and asking questions. I would request you guys to drop off so that ज्यादा वो कॉम्पैक्ट ना दिखे, थोड़ा इम्तियाज भाई दिखे कि उनसे हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा फोकस Okay, jazakallah. Thank you. I'll be in background. for joining. थैंक यू जलील भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। So अशफाक का एक क्वेश्चन लेते हैं। अशफाक भी औरंगाबाद से है, अपने पोस्ट ऑफिस के पास में। सो उनका एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू अशफाक, आप पूछ सकते हैं। आई थिंक इम्तियाज साहब का। तो सर ये अभी जैसा इस सिचुएशन में ये भीड़, गंगापुर या बैजापुर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या प्लान है? अभी मतलब हम तो औरंगाबाद में तो ऑलरेडी इफेक्टेड है, या वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स के लिए या आपका कुछ प्लान है क्या सर? बेसिकली जो हमारा सिटी एरिया छोड़ के बाहर का जो एरिया है, जो ग्रामीण एरिया कहते हैं, तालुका प्लेसेस जो है हमारे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अशफाक भाई मेरा मतलब हमारा पर्सनल असेसमेंट जो था, जब हम लोग एवरी वीक व्हेन ऑल द ऑफिशियल्स व्हेन वी मीट टू डिस्कस एंड रिव्यू द सिचुएशन, हमको एक चीज समझ में आया था, मोर देन द सिटी द पीपल आर एक्चुअली मोर कॉशियस इन रूरल एरियाज। उन लोगों ने जिस तरह का प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे वो मतलब शहरों से ज्यादा था। नेचुरल है कि मतलब शहरों के, गांव के अंदर या दूसरे तालुका प्लेसेस के अंदर इस तरह के, जैसा औरंगाबाद के अंदर हम बैजीपुरा ले ले या कटकट गेट ले ले कि जहां पर है तो तंग गलियां है, घरों के अंदर घर लगे हुए है, छोटे छोटे मकानात है, वहां पर एक एक मकान के अंदर 8-8, 10-10 लोग है। ऐसा सिनेरियो अगर इतना ज्यादा आपको बाहर के एरिया के अंदर नहीं मिला है।
and I think the lockdown was more successful in rural areas than in the city areas, बेसिकली बिकॉज ऑफ मतलब एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो उस नजरिए से है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज ये है कि हमारे को सिर्फ कसाब खेड़े के अंदर कुछ केसेस मिले थे, लेकिन वो भी है तो उसको कंटेन कर लिया गया था। तो जितने भी तालुका प्लेसेस थे, वेदर इट वाज कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, खुलदाबाद, सोएगांव, तो यहाँ से केसेस नहीं आए हैं। वो एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा साइन हमारे लिए सबके लिए ये था। वरना क्या है कि इन इलाकों के अंदर हॉस्पिटल्स नहीं है, मतलब अगर वहां पे पेशेंट्स अगर आ जाते थे तो इट वुड हैव बीन अ डिजास्ट्रस, क्योंकि वो पूरे के पूरे पेशेंट्स को हमको औरंगाबाद शिफ्ट करना पड़ा होता। और होता ये था कि ऑलरेडी मतलब घाटी अस्पताल के अंदर क्या हालत है आपको भी मालूम है, तो बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ गया होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अभी तक वहां पर इतना ज्यादा केसेस हुए नहीं। थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स अशफाक फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हो गए तो आप ड्रॉप कर लें इंशाल्लाह, क्योंकि एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लोग फंजी ना दिखें। सो अभी हमारे साथ है इमरान पाशा। इमरान भाई आपका शायद कैमरा जो है पोजीशन नहीं अभी सही है। सो इमरान भाई इज रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यूयॉर्क, इंडियन मुस्लिम, इंडियन भी कम्युनिटीज में है। तो इमरान भाई ही इज फ्रॉम हैदराबाद, लेकिन आपको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और हमारी जो मैं आपको बताया था बात भी हुई थी। ही इज बीन काइंड ऑफ बात होती रहती है, अरे ये क्या चल रहा है, वो क्या है, लेबर्स का जब वो स्पेशली तो हमारी डिटेल में बात हुई। So then I thought, why don't you join and then you can have a conversation. And then we have Khalid Ansari bhai. So he is from North Carolina. Follow सारी चीजें political उसमें ज्यादा इनका पकड़ है। तो इनके एक दो questions थे, and then they have been following you also, appreciating your work. We discussed many things regarding the development है और अलग-अलग जो आगे के road map है। तो quickly आप पूछ लें खालिद भाई आपका जो question है। Okay, inshallah. Thank you so much, Jalil bhai. Ramadan Mubarak. Thank you for all the good efforts that you're doing. It's enlightening to such works. Basically, your new political landscape, जो especially Maharashtra में evolve हुआ in the aftermath Modi 1.0 and 2.0. So it gives us some hope that Hindutva can be resisted in different ways. So I think in Maharashtra I see that maybe a Muslim alliance with Marathas can defer the Manuvad or Brahmanwad of Fadnavis, where it seems Uddhav is acting very responsibly, and so far he has shown excellent message, which very couple of more other chief ministers have shown. So see this type of alignment of political forces heading to. Khalid bhai, it was not a natural choice that all these parties came together. It was a compulsion. ऐसा था कि एक रात के अंदर क्या क्या हुआ था, यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, कि सुबह 6 बजे राजभवन के अंदर जाके ये सब किया गया था। एंड आफ्टर दैट देखिए सत्ता में आने के लिए दे हैड टू डू दैट। उसमें मतलब यू नो फॉर श्योर कि मतलब कांग्रेस एंड द एनसीपी they can't live without power. So for them it was difficult कि 5 साल सत्ता के बाहर रहने के बाद and another 5 years it was difficult for them. So they had to have that alliance, an unnatural alliance with the Shiv Sena. And but luckily मतलब अभी तक तो अच्छा चल रहा है। बट ये है कि वहां पर too many masters का वहां पे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। The bureaucracy doesn't know कि actually हम किस को सुने करके उसके अंदर, because they are all like most of them are like potential chief minister candidates है। अब कोई नीचे आ गया है, कोई ऊपर चला गया है, so it's getting very difficult for the bureaucracy कि यार किस को सुना जाए करके उसमें, कि एक कांग्रेस का एक तरफ लेके जाता है, एनसीपी का एक तरफ लेके जाते हैं। So outside it में लोग कि यार everything is बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है करके, but somewhere down the line मतलब कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन रहता है। But now as you rightly said, I also have appreciated, I have gone on record to say how Mr. Uddhav Thackeray has handled the things so far as far as the coronavirus thing is concerned, and हमने उसका appreciation किया है
एक बात सही है कि मतलब कभी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, खालिद भाई आपने भी कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, या मैंने एज अ जर्नलिस्ट कभी रहते हुए ये कभी मेरे सपने में भी नहीं आया था कि शिवसेना भी मतलब सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज एंड हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने वाली पार्टीज ये एक साथ मिलके आ सकती है करके, बट दैट हैज वर्कड। तो अब देखना है आगे आगे चल के क्या होता है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि टिल द टाइम मोदी इज देयर, वो जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है इट्स गोइंग टू बी देयर, और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली उसको आगे चलाएंगे। As I have seen personally in the 2-3 sessions that we have been in the parliament, मतलब वहां पर तो ऐसा लगता है कि just one point agenda, nobody has any thing to do with development और बाकी चीजें जो है वो सब अपनी जगह के ऊपर सही है। The first priority is how to target one particular community and take on the Hindutva agenda. तो आगे देखते हैं कि even Right. I'm keeping my fingers crossed. So you see, sorry, Basit bhai, if you don't mind, another 10 seconds maybe. You see that is in Shiv Sena, is there a realization that they can count on Muslim votes to deter BJP, because BJP is otherwise would have followed them. Their future was almost was ending because the way the BJP was aggressively going after the Shiv Sena Maratha votes and power in Maharashtra. So hopefully, this would be some respite for Muslim community through Shiv Sena to keep BJP at bay. हाँ बिल्कुल सही है ये, मतलब एक ऑप्शन और तैयार हुआ है, लेकिन यही है कि मतलब देखिए एकदम टोटल 100% है तो शिवसेना अगर हिंदुत्व का एजेंडा अगर छोड़ डालेगी तो then it will be again problematic for them. You have another ठाकरे getting closer to the BJP. तो जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, अब जैसा फॉर एग्जांपल अगर एक औरंगाबाद का ही ले लीजिएगा, उसमें ना मतलब अगर औरंगाबाद और संभाजी नगर की बात आएगी तो शिवसेना विल ऑलवेज से कि नहीं हम तो संभाजी नगर ही मतलब करेंगे करके, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द कांग्रेस एंड द एनसीपी की यार मतलब हमको तो औरंगाबाद ही रखने का है, बिकॉज दे स्टिल हैव सम जो थोड़े बहुत तो मुसलमान जो उनके साथ अभी जुड़े हुए हैं कांग्रेस एनसीपी के साथ, देन दे विल मूव अवे फ्रॉम देम कि अगर आप संभाजी नगर का, सो दीज आर द इश्यूज, कंटेंशियस इश्यूज व्हिच दे विल हैव टू बैलेंस वेरी केयरफुली टू रन द शो। अब आगे हमें भी देखना है कि मतलब ये इस तरह के जो इश्यूज रहेंगे, जैसे राम मंदिर का इश्यू है, राम मंदिर का इश्यू है या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, जो इस तरह के जो इश्यूज रहेंगे उसके ऊपर इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक कि इनको अपना अपना स्टैंड लेते हुए अपने अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करते हुए आगे किस तरह से चलाते हैं। इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी। एक चीज थी, सॉरी खालिद भाई एंड इम्तियाज भाई, ये क्वेश्चन पूछ लिए सब है लेकिन हम इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल रखना चाह रहे थे दूर से, क्योंकि we had so many things to discuss, especially constructive बोलो या towards औरंगाबाद डेवलपमेंट है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे, but then thanks for asking question Khalid bhai. Jazakallah. Related to non-political, but Khan, just a comment here. So I was watching Imtiaz bhai's video with Bilal the other day. They're doing a series. It's very difficult to keep a discussion with Imtiaz Jalil apolitical actually. And I think Khalid bhai just filled it in and made it go completely political. But it's good. Yeah. इम्तियाज भाई बोल रहे कि अब आया एक्चुअल में क्वेश्चन, मेरे काम की बात आई है बोले। Thanks for your time Khalid bhai. Khalid bhai is mashallah is very active in his community, कई सारे organizations से related हैं, and he's been doing a tremendous job. IMC के जो है वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आप, so he's been very active and then doing great work, but he's been following you I think since long time very closely. तो हमारी बात हुई थी, तो he just खालिद भाई कहाँ से है आप, किस जगह से है? जी जलील भाई, I am based in Raleigh, North Carolina, लेकिन I am from Nizamabad. I think I have a close relative who's a relative of you, Farhana Bhabi. I don't know if you know. And also a long time back आपके परभनी के MLA थे 80s में, देशमुख साहब. He was close friend of my uncle. He used to come to our house. And my couple of my cousins studied from Prabhani College, agriculture college. रिश्तेदारी अब औरंगाबाद से हटके बाहर भी आना शुरू हो गई है,
औरंगाबाद में आप किसी से भी मिलो तो वो रिश्तेदारी रहती है। तो क्विकली इमरान भाई इज विद अस। इमरान भाई इज पार्ट ऑफ, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड है माशाल्लाह, इज वेरी एक्टिव। रिसेंट में यहाँ के कांग्रेसमैन के साथ और पॉलिटिकल लोगों, मतलब एक अथॉरिटी के साथ में मिलकर बड़ा रिलीफ वर्क किया है इन्होंने। बहुत ही रिप्रेजेंटेड द एंटायर कम्युनिटी। कल हमने इनका किया था तो ही आल्सो हैड फ्यू थिंग्स कि हम क्या मदद कर सकते हैं न्यूयॉर्क से, या हम यहाँ से आपके लिए क्या हो सकता है। इमरान भाई आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। Sure. Assalamu alaikum, Jalil bhai. Thank you, Basit, and thank you, Khalid bhai, for giving me the opportunity to ask questions. I thought, पूरा टाइम आप ही ले लेंगे। खालिद अंसारी भाई हमारे बुजुर्ग है, मेरे So you can see I represent IAMC, New York chapter. तो वैसे मैं हैदराबाद से हूँ, खालिद भाई का पड़ोसी हूँ, निजामाबाद से few kilometers. तो मेरे दो सवाल थे बेसिकली, बट छोटे सवाल। I will not take much of the time and I will not keep it political. तो फर्स्ट वन वाज, पहले तो कोरोना इंडिया में मुसलमान बना था, राइट? एंड इट वाज ड्यू टू मरकज के तबलीगी जमात के लोगों की वजह से, एंड देन complete focus is shifted to donors of plasma and all that. So any chance do we have any कितने पेशेंट्स को बचाए अपने तबलीगी जमात के लोग जो कोरोना के एक्चुअल ये थे, स्प्रेडर्स थे, supposed to be, right? So do we have those numbers or? No, अभी तक वो डेटा इस तरह का कोई आया नहीं है। एंड बेसिकली एवरी स्टेट गवर्नमेंट वाज हैविंग अ डिफरेंट स्टैंड। जैसा कि मतलब वो प्लाज्मा कोई कह रहा था कि नहीं, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि नहीं, वी रियली वर्किंग ऑन दैट। तो अभी तो उसका इमीडिएट डेटा आया भी नहीं है, और आएगा भी तो वो उसे बताएंगे क्या, ये भी एक सवाल पैदा होता है कि मतलब जिनको हमने विलेन बनाए थे वो हमारे लिए हीरो बन के आए हैं करके, तो whether they are really going to come out with the figures, I don't think so. That's right. That is the whole reason why I was asking the question. अगर कुछ डेटा अगर अपने तरफ से मिलता है करता है तो we can show them, show to the entire world के भाई लोग, जिसके ऊपर आप लोग accusations किए थे कि कैसे जर्नल कितने लोगों को बचाए करे करके. That was the whole reason for that question. The second question is follow up to what you were saying कि भाई अब इंडिया के यूथ को जो है ना, औरंगाबाद के यूथ को जॉब्स नहीं ढूंढना चाहिए, अभी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड थॉट. I really appreciate that. Me being myself as an entrepreneur, I would definitely encourage that. However, आज के हालात देखें तो एक बंडी वाला भी जो गरीब बंडी वाला भी जो फ्रूट बेच रहा है, अगर वो मुसलमान है, he is not allowed to sell fruits, और कह रहे हैं कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों को कि भाई you are not supposed to buy stuff from Muslims. So how do you think, what is the situation in Aurangabad especially? How do you think Muslims can deal with these kind of issues? एक तो बंडी वाला तो वैसे ही परेशान है. If somebody opens up a company or a business, do you think they have a chance to survive? इमरान भाई, मतलब एक बहुत अच्छा सवाल ये है कि मतलब अब हम लोगों को नहीं, क्या अपने अखलाक के जरिए लोगों को दिल जीतना है। ये जो आप जो बता रहे हैं कि भाई मतलब इनसे खरीदेंगे नहीं, मैं समझता हूँ ये ओवरऑल, मैं समझता हूँ इट वोंट बी एज बिग अ प्रॉब्लम एज बीइंग ब्लोन आउट या दिखाया जो जा रहा है कि नहीं भैया। ये मतलब देखिए, ये 2% जो लोग है जो इस तरह की हरकतें या जिस तरह, मतलब आप कितना भी कंस्ट्रक्टिव अच्छा काम कर ले तो आपको वो 2% लोग है तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलेगी ही कि इमरान भाई तुम्हें ब्लू शर्ट क्यों पहने हैं, तुमने भगवा पहनना चाहिए था करके, उसमें तुमने सैफरन पहनना चाहिए था। तो इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग हमेशा रहने वाले हैं, वो खत्म नहीं होने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। और स्पेशली औरंगाबाद के अंदर तो इमरान भाई एक अच्छी बात ये है कि मैं जब चुन के आया हूँ, मैं महाराष्ट्र से, आई हैपन टू बी द ओनली मुस्लिम एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र, इतने बड़े स्टेट के अंदर से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब मेरी जीत के अंदर it was not just the Muslim community that came forward. There were n number of non-Muslim youngsters, the youth of Aurangabad. They all came forward and they voted for me. The educated class, the entire educated class, irrespective of what caste, community you belong to, they voted for me. और कहीं ना कहीं they are keeping a very close watch on me कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदे को हमने है तो वोट दिए हुए है, तो इसके हर स्टेप को ये देखना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मतलब लोगों का जिस तरह से रिस्पांस रहता है, जो लोग जो करीब आते हैं आपको जिस तरह से मतलब एक चीज ये है कि इमरान भाई हमको ये सीखना पड़ेगा कि जो चीज गलत है तो वो गलत है, और ये ओपनली आके बोलना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इफ समबडी फ्रॉम माय कम्युनिटी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं, मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं,
then it will become bad, you know, it will go from bad to worse. मतलब you will have to understand कि नहीं यार, मतलब ये चीज गलत हो रही है तो उसको ओपनली आके हमको ये करना पड़ेगा, which I think unfortunately not many Muslim leaders are doing that. मेरे हिसाब से वो चीज आपको करना पड़ेगा उसके अंदर, you know. मतलब what I felt bad is, for just to give you an example, there was an incident where some youngsters bashed up some policemen. देखिए, पुलिस वालों ने वो बंदे को मारा, उसकी आंख वाँख फूटी, मैं उसका विजुअल नहीं है और उसका विजुअल नहीं था, लेकिन वीडियो जो था वो ये था कि ये लड़के हैं तो पुलिस वालों को डंडा पकड़ के मार रहे हैं, और वो वीडियो इतना वायरल हुआ एंड यू नो उसके ऊपर मतलब इतना डिफिकल्ट था उसके अंदर. आई क्रिटिसाइज दैट, मतलब आई कंडेम दैट कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट द वे how one should be handling. And I also told the police कि मतलब you should inquire why this incident led to these youngsters attacking the policemen. उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये कहा कि मतलब कम वॉट वे, दिस इज नॉट द वे कि आप पुलिस वालों को इस तरह से रोड के ऊपर पिटाई करें. एंड दोस विजुअल्स वेंट वायरल, पूरे मीडिया के ऊपर चला गया था. यू नो, अनफॉर्चुनेटली वन मौलाना फ्रॉम वन रेप्यूटेड जमात, he came out openly and he said कि हम ये लड़कों की अब मदद करेंगे, इनको जेल से छुड़ाने का हम काम करेंगे. I said if you really want to do it, why come on camera? Huh? मतलब what is it कि मतलब you want to publicize that, and ये उसके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है if you want to really help them उसमें, then उसका ये हुआ कि that video again went viral कि देखो ये समाज के मुसलमानों को किस तरह से, मतलब इनके जो बड़े बड़े उल्मा है, जो दाढ़ी वाले लोग हैं, जो टोपी पहनने वाले लोग हैं, ये देखिए आके कैसा इन लोगों को मदद कर रहे हैं जो इन्होंने पुलिस वालों को मारे हैं करके. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड आई थिंक मतलब हर एक को मतलब बहुत अच्छे तरीके से अब ये इन द गिवन सिनेरियो, मतलब आप तो वहां पर बैठे हुए हैं, हर रोज हमारे को वी हैव टू मतलब एक बहुत ही टाइट हमें चलना पड़ता है. बोला था मैं, इमरान भाई को क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने बोला कि क्योंकि वो जूम का कॉल अभी एंड होने में है और फेसबुक के 4-5 क्वेश्चन है जो औरंगाबाद से रिलेटेड है. सो आई जस्ट वांट टू आस्क दोस गाइस. थैंक यू खालिद भाई, इमरान भाई फॉर जॉइनिंग. अल्लाह खैर फॉर योर टाइम. Thank you. Thank you. Jazakallah khair. Nice meeting you, Jalil bhai. Inshallah. ठीक है इमरान भाई, थैंक यू सो मच. Thank you. सो इम्तियाज सर, कुछ क्वेश्चंस जो है फेसबुक पे बहुत लोग बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, तो उसमें से मैं सोचा एक कंसोलिडेटेड कर लेते हैं वेयर वी कैन यू नो कवर दोस क्वेश्चंस. जी. तो उसमें से एक तो रोड मैप के बारे में कि आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर दैट कि यंगस्टर्स को आगे आना है, तो एक रोड मैप का क्वेश्चन था रफीक पठान खान साहब का. सो आई थिंक दैट्स ऑलरेडी बीन कवर्ड रफीक साहब. फिर उसमें एक जो आपका रोल था, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट. गणेश वाघमारे साहब का जो क्वेश्चन था कि मिसट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट्स के बारे में, तो अगर गणेश वाघमारे साहब अगर आप पहले का देखेंगे इनिशियल 15 मिनट्स का, उसमें इम्तियाज साहब ने बहुत डिटेल में कवर किया वो पॉइंट, और उसमें उनका रोल भी उन्होंने बताया कि व्हाट इज हिज रोल. एंड देयर आर टू मेनी एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो लोग बहुत उसमें इन्वॉल्व हैं. तो आप शायद सुन लें अगर वो 10 मिनट, तो यू नो इट विल क्लेरिफाई योर क्वेश्चन. देन एक क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड है, वो मैं अभी दो थे बेसिकली. तो एक तो ये था कि भाई जो फूड एंड बेवरेजेस हैं, दैट इंडस्ट्री इज बीइंग हिट वेरी हार्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. हुई है, औरंगाबाद में भी हुआ था. तो वो क्वेश्चन मुहिब फारूकी का था, ही हिमसेल्फ इज अ शेफ. सो उनका ये था कि आर वी प्लानिंग फॉर एनी टेक आउट्स या जो रेस्टोरेंट्स का है, भले ही बैठ के ना खाएं होटल में, लेकिन पार्सल्स है या टेक आउट्स का ऑफिशियल थिंग्स दैट यू सी इज कमिंग आउट फ्रॉम देयर. देखिए मतलब let's be very clear on this front. Across the globe I think this will be a major problem at least for the next couple of months till everything subsides. बहुत ज्यादा मतलब अभी लोगों के अंदर एक डर खौफ ये रहता है. the very fact कि मतलब मैं बाहर से अब नान खलिया भी अगर आता है तो नान खलिया नहीं खा रहा हूँ मैं, it indicates कि तो ये है कि कुछ महीने तो लगेंगे टू नॉर्मलाइज थिंग्स, स्पेशली द फूड इंडस्ट्री के ताल्लुक से लोगों के अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आने के लिए. बट टिल दैट टाइम इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट. अब यही सवाल है कि मतलब द पीपल वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री, उनके लिए कैसा होगा, उनका सर्वाइवल कैसा होगा उसके अंदर, बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्रीज या समझ लीजिए बेकरी के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं. For them it's going to be very difficult. और तब जाकर मतलब हम लोगों को क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए
वो एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन। I think that's where this group जो individual लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, who has capability, who has skills, I think these guys have to form their own groups या एक front आप तैयार करें. This is what I feel. I'm sorry, I'm not trying to give answers on your behalf, but this is my take. कि तब जाकर वो टाइम पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत रहेंगी, which under your guidance we can work towards the development, और ये लोग अपने skills use करके कुछ ना कुछ करवा सकते हैं. बस देखिए मतलब मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो एक फाउंडेशन है, दुआ फाउंडेशन के नाम के ऊपर से हम लोग है तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ये काम कर रहा हूँ. नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट आफ्टर दिस कोविड थिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दैट वर्क एटलीस्ट 100 टाइम्स. तो उसके लिए यकीनन मतलब ये है कि आप हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये कर रहे थे, अब हम सोच रहे हैं कि भाई यंगस्टर्स को हम कोई स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज छोटे छोटे अगर करवा सकते हैं क्या. इवन अगर हम समझ लीजिएगा कि अगर हमने 100 बच्चों को अगर हमने मोबाइल रिपेयरिंग का अगर हमने कोर्स करवा दिए है, मतलब एक फ्लरिशिंग ये है और बच्चे आराम से कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये वो करने की जरूरत नहीं रहेगी. तो समथिंग लाइक दिस वी विल हैव टू वर्क आउट इन कोलैबोरेशन विद यू पीपल, जितने भी लोग है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो सत्येंद्र को जरूर. Last 5 minutes है. I think I'll not take more time of yours. I know आपको. Yeah, I have some officers waiting for me. Okay, sir. This एक last question था जो मतलब दो थे बेसिकली. तो एक तो आरिफ कॉलोनी में जो पुलिस का हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है, where अगर 11 बजे बंद हो रहा है तो 10:30 को जो है मारना कुछ चालू हो रहा है. So I'm not really aware of the ground reality, but that was the question. So I thought I'll just ask you that question. नहीं मैं सिर्फ इतना बता दूं, yesterday night at 8 o'clock I had a meeting with the commissioner of police, और वहां पर मुझे भी कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आई थी. तो आरिफ कॉलोनी के जो चेयरमैन है वहां पर नासिर काजी साहब, और वहां पे हमारे एक बंदा है परवेज, ये दोनों को मैंने वहां पर बुलाया था. वी हैड अ मीटिंग विद द कमिश्नर ऑफ पुलिस, और आज ही मतलब उन लोगों ने फेसबुक के ऊपर या मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर डाले, वी आर थैंकफुल टू इम्तियाज जलील भाई कि मतलब आज हमारे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है करके. सो देयर वर सम प्रॉब्लम्स, आई डू एग्री, मतलब लेकिन उसको हम एड्रेस कर रहे हैं. आई डोंट थिंक सो दैट प्रॉब्लम विल बी देयर एनीमोर. एक लास्ट क्विक रैप अप जो मैं पर्सनली पूछना चाहता था कि जो रिलीफ वर्क का काम हुआ है तो कई सारी चीजें उठी थी, कई सारी चीजें पता हुई थी, मुझे पर्सनली पता था कि क्या मतलब काम चल रहा है. तो कैन यू जस्ट ब्रीफ अस अबाउट दैट, जो गांवों में जो काम हुआ है, जो आई नो इट इज काइंड ऑफ अ शो ऑफ नहीं कि करना है, लेकिन पर्सनली कई सारे एनआरआईज का भी एक क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी हेल्प इन दैट. तो एक आप उतना रैप अप कर लें, बस उसके आगे मैं नहीं पूछूंगा. बासित भाई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही मतलब हम लोग हमारे तरफ से मतलब पूरी टीम काम कर रही थी उसमें, लेकिन आप देखे होंगे कि मतलब जितना काम किया गया है उतनी पब्लिसिटी नहीं की गई है, बिकॉज आई हैड क्लियरली इंस्ट्रक्टेड ऑल माय टीम मेंबर्स. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काम करने वाले जितने भी मतलब मेरे टीम मेंबर्स है, ये कोई भी पब्लिसिटी मीडिया savvy नहीं है कि नहीं यार हमको ये दिखाना है, ये करना है करके इसमें. तो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जारी है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम जितना काम कर रहे थे वो इतना है, और जिन लोगों तक हमें पहुंचना है वो इतने है, हाँ बहुत ज्यादा है. तो मतलब कितना भी करे मेरे हिसाब से यू वोंट बी एबल टू रीच आउट टू एवरी सिंगल पर्सन हमारे लेवल के ऊपर. द मोर हेल्प वी गेट, बहुत सारे एनजीओज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं, तो द मोर द बेटर मैं समझता हूँ. और अभी तो मतलब अभी रमजान के और 15 दिन बाकी है, और ये पीरियड रहेगा कि जहां पर हम लोगों को और ज्यादा लोगों तक हम किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट द मुस्लिम्स दैट वी आर हेल्प गिविंग हेल्प टू, मतलब इन नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम दलित एरियाज के अंदर भी द सिचुएशन इज रियली वेरी बैड, एंड वी आर रीचिंग आउट टू ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम लोग इंसानों की मदद करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई नो आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट थैंक यू सो मच. थैंक यू बासित. अगर आपका पास टाइम रहा तो द आइडिया इज कि अगर हम 3 महीने में एक बार ये रखें, बट दैट विल नॉट बी क्वेश्चन एंड आंसर, दैट विल बी जस्ट स्पेसिफिक टू वन एजेंडा. आपका एक घंटा. श्योर बासित, श्योर, डेफिनेटली आई लव टू. थैंक यू बासित. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.